Hello, good morning dear students. Here we are on chapter 3rd, that is human reproduction. And in this chapter, in yesterday video, we study about the figure 3.12, that is the human fetus within the uterus. As you know very well, in this we discuss about the pregnancy and embryonic development, how the embryo takes place in the uterus, how the placenta function act as on embryo. So here we are earlier study about the some releasing hormones from the placenta in the uterus, that are HCG, that is human chorionic gonadotropin, HPL, that is human placental lactogen, estrogens, progesterones, and later of pregnancy phase, that is the hormone, most important hormone, that is relaxin. And also we study about in the formation of embryo related to the uterus, their walls, layers of uterus, ectoderm, endoderm and mesoderm, about the stem cells. हमने इन सब चीज़ों के बारे में कल की वीडियो में जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं. नाउ वी आर ऑन आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज़ पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट मोस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. आफ्टर दिस I will send you the NCERT solutions of this chapter. You have to note down in your notebooks. Try to draw the diagrams and make sure that you all understand about this chapter very well. If you are having any type of queries, then contact me. Now come to the topic, that is parturition and lactation. What is parturition and lactation? So here we are discussing after the formation of embryo, that is the parturition and lactation. When the embryo takes place in the uterus, fixes in the uterine walls, and on that time placenta help in providing nourishment, nutrition with the help of their nutritive tissues, with their chorionic bellies, and with the help of umbilical cord, which help in taking nutritious food and also releasing their excretory products. So after this, the pregnancy and embryonic development, parturition takes place, and during the delivery the lactation also held. So the average of, we are on the first line, that is the average duration of human pregnancy is about 9 months. Human pregnancy का जो टाइम पीरियड होता है, that is completely 9 months 36 weeks, okay, which is called the gestation period. Gestation period at the time of formation of zygote to the time of delivery, this period is secured as the gestation period. Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion delivery of the fetus. When the contraction starts in the uterus at the time of delivery, then the childbirth takes place. In this process of delivery of the fetus, the childbirth is called the parturition. When the baby takes birth, this process is known as parturition. I hope you all understand very well and understanding the concept. Now, parturition induced by a complex neuroendocrine mechanism. Parturition जो है कोरिलेटेड रहता है एक तरीके का एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, जो नर्वस सिस्टम के थ्रू रिलीज़ किए गए हार्मोन्स पर डिपेंड करती है. जो आपने हार्मोन्स यूट्रस में प्लेसेंटा के थ्रू रिलीजिंग पढ़े थे, वो सारे के सारे हार्मोन्स चाइल्ड बर्थ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं. द सिग्नल्स फॉर parturition originate from the fully developed fetus and the placenta, which induced mild uterine contraction called fetal ejection reflex. When the fetus is completely formed, when the baby organ
are completely formed and they take their complete structure. They form completely well according to their parent. So the process of development is stopped and the childbirth time is near about, and they try to take place at the form of childbirth. So the one type of contraction, we can say the ejection reflex, develops in the fetus, and placenta induced mild uterine contraction and the fetal ejection reflex starts. So this triggers release of oxytocin from the maternal pituitary. This hormone is released from the brain, from the endocrine gland, that is pituitary gland. और during the time of delivery, जब contraction start होता है, at the time of the childbirth, the pituitary gland releases the relaxin hormone to relax the body, to help in childbirth with relief. So also releasing oxytocin hormone, it acts as on the uterine muscles and causes stronger uterine contraction, in which it turns stimulate further secretion of oxytocin. ऑक्सीटोसिन जो है वो बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है चाइल्ड बेबी, जो चाइल्ड बर्थ होता है उसमें. नाउ द simulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in stronger contraction. ज़्यादा से ज़्यादा जो पेन स्टार्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होता है, उस कॉन्ट्रैक्शन में क्या करता है, ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है और स्ट्रॉन्ग मसल्स को फॉर्म करता है, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो मसल्स ब्रेक डाउन ना हो जाएं और वो अपना प्रॉपर तरीके से फंक्शन अटेम्प्ट करता है. This leads to expulsion of the baby out of the uterus. It also helps in the expulsion of baby from the uterus. Childbirth में वो उसको बहुत ही हेल्प करता है. This leads to explosion of the baby out of the uterus through the birth canal. जो पैसेज होता है बर्थ डिलीवरी टाइम में, तो उस बर्थ कैनाल से, उस पाइप के थ्रू जो वो पैसेज होता है, उसके थ्रू बेबी का बर्थ होना पॉसिबल होता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज द पार्टूरेशन. सून आफ्टर, थोड़ी देर के बाद, द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, और जो बेबी होता है इट टेक्स बर्थ. द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस, और प्लेसेंटा जो है वो भी इसको एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है. जो कि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था, वो भी उसको उसी के साथ निकाल लिया जाता है. व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी? आपको क्या लगता है कि डॉक्टर्स जो है वो इंड्यूस क्यों करते हैं डिलीवरी में, डिलीवरी के प्रोसेस को तेज़ करने के लिए? वाई दे इंड्यूस डिलीवरी? सो हेयर अ क्वेश्चन फॉर्म. व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी? यस. सो द क्वेश्चन, according to the question, the mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy and starts producing milk towards the end of the pregnancy by the process of lactation. ये तो थी हमारी लैक्टेशन की प्रोसेस. मगर ये जो ऊपर का हमने पार्टीशन की प्रोसेस पढ़ी, तो इसमें जो क्वेश्चन फॉर्म हो रहा, व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी? डॉक्टर्स जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं डिलीवरी को इंड्यूस करने में? ताकि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है थ्रू द पिट्यूटरी ग्लैंड वो इजीली क्या हो जाए, सिक्रेट हो सके और वो उसकी चाइल्ड बर्थ में हेल्प कर सके. दैट्स वाई दे इंजेक्ट टू इंड्यूस द डिलीवरी प्रोसेस. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल. सो द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन इज co-related or co-connected with the process of delivery. When the delivery takes place, the mammary gland of the female undergo differentiation during pregnancy and starts producing milk towards the end of the pregnancy. The process called the lactation, and then releases milk for the feeding product of baby. So this helps to mother in feeding the newborn baby, और ये हेल्प करता है उस न्यूबॉर्न बेबी को हेल्प करने में.
बिकॉज इट कैरीज थाउजेंड्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स, और इसमें इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट होता है इसके लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए, जो कि उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. So, the milk produced during the initial few days of lactation is called the colostrum. जो the milk converted into yellow color. तो येलो कलर का जो मिल्क कन्वर्ट हो रखा है आफ्टर द प्रेगनेंसी, डायरेक्टली जो है बेबी को फीड कराया जाता है, that of in yellow color because some of the immunoglobulins present in it, because it forms during the term of pregnancy. So this type of milk is known as the colostrum, which contains several antibodies absolutely essential to develop रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी. वो उसकी सराउंडिंग्स में जो अभी तक तो वो अपने मदर की यूट्रस में रहता है, तो उसको इम्यूनोग्लोबिन उसकी मदर से बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड मिलता रहता है, मगर बाहर के एनवायरनमेंट में सराउंडिंग में उसको खुद अपने आप को सेफ रखना है. तो वो सेफ रखने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इम्यूनिटी सिस्टम मिलता है, वो किसके थ्रू मिलता है? बाय द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रम. Breast feeding during the initial period of infant growth is recommended by doctor for bringing up a healthy baby. तो सबसे पहले कंसल्ट करते हैं डॉक्टर आफ्टर द बेबी बर्थ कि यू हैव टू फीड योर बेबी विद योर मिल्क. सो ड्यूरिंग breast feeding is most important part to help in a growth of healthy baby. So this is the most important part in which through which the questions are formed in your board examinations. So we study about the colostrum and lactation, that is the most important part. समरी हमने पहले ही पढ़ ली थी. रिलेटेड द क्वेश्चंस जो हैं ये आप लोग अटैम्प्ट करने की कोशिश करें. इसमें देखिए, नेम द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चंस को मैं इसमें समझा देती हूँ. ये क्वेश्चन मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के तो आपको वर्कशीट में दे दिए थे. येस, वी हैव टू टेक सीरियस योर क्वेश्चंस. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको बहुत ही अच्छे से डायग्राम बनाना है लेबलिंग पार्ट्स के थ्रू. नाउ आफ्टर दिस द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. राइट टू मेजर फंक्शन ऑफ ईच टेस्टिस एंड ओवरी. दो मेजर फंक्शंस लिखने हैं टेस्टिस के और ओवरी के. किस तरीके से ये एक्ट करता है, क्या फॉर्मेशन करता है, कैसे करता है. तो दो से ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है स्पर्म फॉर्मेशन है, बहुत ही हेल्पफुल है. तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? द प्रोसेस इन विच स्पर्म टेक्स प्लेस. फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस. तो इसको हमें प्रोसेस को ब्रीफली बताना है, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ चुके हैं. नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. वो हार्मोन्स के नाम बताने जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्पफुल रहते हैं, दैट इज द एंड्रोजन हार्मोन. नाउ डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन. स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच स्पर्म्स टेक्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एंड स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस इन विच it completely start formation and convert into spermatozoa. Draw a well labeled diagram of the sperm. You have already study about this. What are the major components of seminal plasma? Major components seminal plasma के क्या होते हैं? जो semen release होता है उसके आपने पढ़ा था, उसमें क्या रिच प्रोडक्ट्स रहते हैं. What are the major function of accessory duct and glands? क्या फंक्शन रहते हैं accessory gland और डक्ट्स के, वो बताने हैं. व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ oogenesis? oogenesis में जो एग फॉर्मेशन होता है, इन द लास्ट 4 eggs आर फॉर्म्ड, 3 गेट डिजेनरेट एंड द फर्स्ट वन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑल्सो हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन. ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ द सेक्शन ऑफ ओवरी. जो आपने टेस्ट सेक्शन ओवरी का पढ़ा था, जिसमें आपकी oocytes फॉर्मेशन, प्राइमरी सेकेंडरी oocytes, ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें इसमें पॉसिबल थी. नाउ हियर ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस. ग्राफियन फॉलिकल का आपको स्ट्रक्चर बनाना है इन विच द आउटर लेयर इज प्रेजेंट, और इस तरीके से आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा. नेम द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. नाउ द नेक्स्ट इज कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम का इसमें आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करना है. Yes,
द कॉर्पस ल्यूटियम, तो इसमें आपको क्या करना है, फंक्शन कॉर्पस ल्यूटियम के फंक्शंस को बताना है कि मेन फंक्शन कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होता है। एक्रोसोम का बताना है फंक्शन क्या होता है, किस टाइप का ये एंजाइम कैरी करता है। फिम्बरी बताना था, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो ओवरी की एंड ओवरी को, जो ओवरी से जो आपकी ओवा है उसको टेकअप करते हैं। एंडोमेट्रियम लेयर के बारे में बताना है, द लेयर ऑफ वन लेयर ऑफ द यूट्रस। और स्पर्म टेल के बारे में बताना, व्हाट द फंक्शन ऑफ स्पर्म टेल्स टेक्स प्लेस। नाउ द नेक्स्ट इज राइट द स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा, ट्रू और फॉल्स के बारे में इसमें बताना है। एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस बाय सेंट्रोली सेल्स, इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो आपको ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सेंट्रोली सेल्स, लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन ओवरी, लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड्रोजन, oogenesis takes place in corpus luteum, menstrual cycle ceases during pregnancy, presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience। ये तो मैंने बहुत ही क्लियर आप लोगों को क्वेश्चंस बताए हैं। व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपको बताना है कौन कौन से हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन में रिलीज होते हैं, ये भी बताना है, उनका फंक्शन भी बताना है आपको। एंड आल्सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ देयर डायग्राम। व्हाट इज़ पार्ट्यूरेशन, ये तो हमने आज ही पढ़ा है। विच हार्मोन इन्वॉल्व इन द इंडक्शन ऑफ पार्ट्यूरेशन, ये भी बहुत ही क्लियरली पढ़ चुका है। इन आवर सोसाइटी द वुमेन्स आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स, कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज़ नॉट करेक्ट, ये भी हमने इसमें पढ़ चुका है। सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस जो बताई थी। हाउ मेनी एग्स आर रिलीज बाय अ ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ, कितने एग्स जो हैं वो रिलीज अप होते हैं। हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वुड यू हैव बीन रिलीज इफ मदर गिव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वर रिलीज बाय द ओवरी ऑफ अ फीमेल डॉग विच गिव बर्थ टू 6 पपीज़, कितनी ओवरीज जो है फॉर्मेशन होता है जिससे कि 6 पपीज़ का फॉर्मेशन रहता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। अब हम इसको थोड़ा सा फीडबैक के लिए चलते हैं प्रोसेस में। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं एक बार फिर से हम लोग इस पर लाइन अप कर लेते हैं। Yes, in this chapter we study about the female reproductive system and their parts. So you have to draw this diagram, this one in your notebooks. Now the next is seminiferous tubules का फंक्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। Now about the female reproductive system, you have to draw. In this we study about the parts of the female reproductive system. You have to draw this one in your notebook. After this, the gametogenesis process, the structure of sperm, the structure of ovary, T section of ovary, the flowcharts of स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपको ग्राफ भी बनाना है इसके अंदर लिखने के साथ साथ। फर्टिलाइजेशन एंड कैप्साइडेशन टेक्स प्लेस, द सेल फॉर्मेशन गेट स्टार्ट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन। ओके, तो इसमें बहुत सारे डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी मिलेंगे। इफ़ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ क्वेरीज you can contact to me very well. I will send you the NCERT questions solutions tomorrow, so watch this video complete, make clear your concept. I hope you all understanding very well. If you are having any type of queries related to this, then contact to me. Okay.